Yes, good morning to all. Sorry. So, in the previous lecture, we have started Chomsky classification on grammar. So, first of all, today I would like to define the classification rules of grammar. So, as I already told you, that Chomsky divide the or classified the grammar into four categories. The categories are type 0 grammar, type 1 grammar, type 2 grammar, and type 3 grammar. Means all the grammar that we have considered are belongs to any one of the category that is defined by the Chomsky. कोई भी ग्रामर आप कंसिडर करोगे तो वो इन्हीं कोई चार कैटेगरी में से किसी में बिलोंग करेगी, राइट? अब अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, सो और सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमारा इसी चॉमस्की क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है. How can we say that our complete entire syllabus is based on this Chomsky classification? Let's see. And I have already completed that the grammar has four tuples. The tuples are set of variable, set of terminal, production rule, and the start symbol. Start symbol is just like the initial state where we have to start our production. And production rules are the rules of the grammar that are used to derive the language or the strings, right? And Vn is the set of variables. Variable always produce something, and terminals are used to produce the strings और द लैंग्वेज. ठीक है ना? अगर कोई ग्रामर है, ये मैंने शायद आपको कल बताया होगा, if we have any grammar and there is grammar without any terminals, so in this situation that grammar will not produce any language. फॉर एग्जाम्पल, ये वाला मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई भी आपको दे रखा है एस टू ए टू ए एस, सपोज ए एस, राइट? अगर मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड द लैंग्वेज, दिस ग्रामर इज गिवन टू यू, दिस इज द ग्रामर, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द लैंग्वेज. सो हाउ कैन बी फाइंड द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर? सो अगर आप कोशिश करें, स्टार्ट सिंबल क्या है? एस. तो एस से आपने क्या किया? आपने एस से अप्लाई किया, ए आ गया, ये दे रखा है. अब ए की जगह क्या लिख सकते हो आप? ए एस, बिकॉज इट इज गिवन टू यू, है ना? जैसा मैंने आपको समझाया था, if A2 BC is any production, then A can be replaced by BC, but BC cannot be replaced by A. Means reverse substitution is not possible in case of grammar, right? So in this situation, the S can directly be produced as to AS, this one. But again, you are getting here वेरिएबल, इट इज नॉट द स्ट्रिंग. ये स्ट्रिंग है क्या? नहीं है, है ना? ये अकेला ए होता तो स्ट्रिंग होता, ए के साथ एक और ए होता तो ये स्ट्रिंग होता. सो इन दिस सिचुएशन इट कांट reflect any, it can't produce any string or any language. So LG of this language of the this given grammar will be 5. Language क्या होगी ऐसी ग्रामर की? is equals to 5. ठीक है? या इसको और अगर आप चाहते हो कि इसका लैंग्वेज निकालना हो तो कैसे आ सकता है? हमने यहाँ पर ले लिया स्मॉल बी, सपोज. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन फाइंड you can find easily the language of this grammar. For example, S to A पहला प्रोडक्शन हो गया आपका, राइट? अब आपने क्या किया? इन प्लेस ऑफ दिस ए यू कैन पुट एस और बी, बिकॉज दीज आर टू प्रोडक्शन ऑफ दिस ए. तो अगर मैं इसका बी रख देता हूं तो बी इज द स्ट्रिंग, है ना? तो बी क्या हुआ? स्ट्रिंग हुआ. यहाँ टर्मिनेट हो गई स्ट्रिंग, बिकॉज इसके बाद हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज बी इज द टर्मिनेटर. सो एस विल डायरेक्ट प्रोड्यूस बी. एस क्या प्रोड्यूस करेगा? बी प्रोड्यूस करेगा, राइट? और दूसरा और क्या प्रोड्यूस कर सकता है तो हम उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं. एस टू ए, एंड ए को क्या रिप्लेस कर सकते हैं? ए एस से कर सकते हैं, राइट? और ए का यही रहेगा. एस को किससे मैं रिप्लेस कर सकता हूं? एस को ए से कर सकता हूं अगेन. और
ए का ए रहा और इस ए को मैं डायरेक्ट टर्मिनेट करना है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ए से बी, है ना। तो मुझे स्ट्रिंग क्या मिल गई, ए बी। तो दिस इज ऑल्सो द टर्मिनेटर, यहाँ पर स्ट्रिंग हमारी टर्मिनेट हो गई, दैट मीन्स दिस इज द लैंग्वेज. So in this scenario, we can find the language of this grammar. But if it is not there, then we can't find the language of that grammar. If we are unable to find the language of any grammar, then in this situation, the language of that grammar will be phi. So this is about the simple execution of the grammar. So now back to the back to the Chomsky classification. So in this situation, these are the validation rules I already discussed with you, and this is the formal definition of the grammar that I already discussed with you. That G equals to Vn sigma Ps, where the set of variable, set of terminal, production rule, and the start symbol. Now we discuss the context-free grammar in detail. So how can we say that a particular grammar is a context-free grammar? So before going in depth about the context-free grammar, first we should start the Chomsky classification in detail so that we can understand different types of grammar as well as different types of machines or the automation that is used to accept the particular type of grammar. So simply, this is the Chomsky classification on grammar. So Noam Chomsky divide the grammar into 4 categories: 0, 1, 2, 3. So in case of 0, you can note down, it is very important for you. So in case of type 0 grammar is called unrestricted grammar. You can note down, type 0 grammar can be considered as the unrestricted grammar. It means that all the grammar that we have considered are type 0 grammar. कोई भी grammar आप जो सोचेंगे that is type 0. ठीक है ना. अब क्या हुआ कि कोई भी ग्रामर आपने सोची वो हो गई टाइप 0, मींस कोई भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. आप ऐसे कह सकते हो ए ग्रामर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड टाइप 0 ग्रामर, और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर इज कॉल्ड टाइप 0 ग्रामर. क्लियर. अब बात ये आती है कि अब धीरे धीरे उसमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हुआ कि उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया तो क्या हुआ, टाइप 1 हो गया. फिर अगर हमने लगाया थोड़ा और रिस्ट्रिक्शन लगाया तो क्या हो गया, टाइप 2 हुआ. और अब हमने और रिस्ट्रिक्शन लगाया तो क्या हुआ, टाइप 3 हुआ. इसका मतलब ये हुआ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर एज पर द चॉम्स्की क्लासिफिकेशन इज रेगुलर ग्रामर. सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर जो होगी वो क्या होगी, रेगुलर ग्रामर होगी. अब देखिए, अब रेगुलर ग्रामर कैसी होगी, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते चले गए. टाइप 0 पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, 1 पर कोई रिस्ट्रिक्शन आया, 2 पर और रिस्ट्रिक्शन आ गए, और 3 पर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गया. So the most restricted grammar by the Chomsky classification is regular grammar, right? So now start with the type 0 grammar. So type 0 grammar means unrestricted grammar, means a grammar without any restriction is called type 0 grammar, right? And the language accepted by this grammar is recursive enumerable language, and Turing machine is the automation machine that is used to accept this grammar. Means type 0 grammar अगर आपसे कोई पूछता है कि write the mapping diagram of different classification on grammar according different classification of grammar and the different automation machine. So you have to map between the grammar categorization as well as automation or the machines. So how can we classify? Type 0 grammar is called unrestricted grammar and accepted by Turing machine. बस एक सेंटेंस आप याद रखो, इससे सारी चीजें क्लियर होंगी. मैं अभी आपको एक दूसरा डायग्राम भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. That will be much easier for you. So now type 0 grammar is called unrestricted grammar, means all the grammar that we consider are type 0 grammar. And Turing machine is the device or the automation that is used to accept that grammar. Clear? And type 0 grammar is also called recursive enumerable ग्रामर, है ना. अब इस ग्रामर को जो सपोर्ट करेगी वो क्या होगी, ये लैंग्वेज होगी. तो हम उसका नाम दे सकते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल
लैंग्वेज। ठीक, अब बात आगे करते हैं। टाइप 0 ग्रामर, इसका मतलब क्या हुआ? नाउ वी आर गोइंग टू इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ओवर द ग्रामर। ठीक है, तो कुछ हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया, देन टाइप 1 ग्रामर इज कॉल्ड। अभी क्या रिस्ट्रिक्शन किया, इसका प्रोडक्शन रूल क्या होगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे डीप में। बस इससे स्टार्ट होने से पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टाइप 1 ग्रामर जो होगा दैट विल कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, एंड LBA linear bounded automata is the machine that accept type 1 grammar। क्लियर हुई बात? Type 0 grammar is accepted by Turing machine. Type 1 grammar is accepted by LBA, that is linear bounded automata। LBA आप लिख सकते हो, ठीक? And the name of type 1 grammar is context sensitive grammar, and type 0 grammar is unrestricted grammar और recursive enumerable grammar। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? और देखिए, ग्रामर और लैंग्वेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ग्रामर का मतलब हुआ सेट ऑफ रूल्स, आपको एक रूल दे दिया, उस रूल के बेस पर जो आपको मिलेगा दैट विल कॉल द लैंग्वेज। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये ग्रामर लिखा है, आपने यहाँ लैंग्वेज लिख दिया, बोथ आर द सेम थिंग। ये जो लैंग्वेज है दैट विल डिराइव फ्रॉम दिस ग्रामर, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई लैंग्वेज डिराइव हो रही है फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल, तो वो प्रोडक्शन रूल कौन फॉलो करेगा? ये ग्रामर फॉलो करेगी। अल्टीमेटली ग्रामर फॉलो नहीं करेगी, ग्रामर प्रोड्यूस करेगी, है ना? और उसको फॉलो करके हमारी लैंग्वेज जनरेट होगी। तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज भी क्या होगी? लैंग्वेज भी हमारी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव होगी, है ना? सेम थिंग इज हियर। अगर कोई ग्रामर हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, इसका मतलब उसका कोई सर्टेन प्रोडक्शन रूल होगा। इफ वी अप्लाई सर्टेन प्रोडक्शन रूल एंड वी विल फाइंड a particular language, then that language will be context free language, because that language derived from the context free grammar. Similarly, regular grammar is there, then the language derived from this grammar after applying the production rule, that is called the regular language। तो आप इसमें अभी लैंग्वेज में और ग्रामर में कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको बता दूंगा। एक ही डेफिनेशन आपको याद रखनी है दोनों में, बस लिखने का तरीका चेंज होगा, मैं आपको समझा दूंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यू शुड कीप इन माइंड that type 0 grammar is called unrestricted grammar and accepted by Turing machine. Type 1 grammar is called context sensitive grammar and accepted by linear bounded automata। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? Now important point is type 2 grammar, that is context free grammar, right? Name of type 2 grammar is context free grammar, and PDA is the automaton, PDA is the automata that accept that particular grammar। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि टाइप 2 ग्रामर का नाम क्या है, तो द नेम ऑफ टाइप 2 ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, राइट? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा दैट विल बी to define the context free grammar। How can we say that particular grammar is context free grammar or particular grammar is context sensitive grammar, right? अब हमारा टारगेट ये होगा। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। तो अब हम अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें टाइप 2 ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड दैट इज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक, नाउ टाइप 3 ग्रामर इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, FA या DFA लिख सकते हो आप, एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर? तो अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे आसान क्या होगा? जिस पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा, है ना? भाई किसी को आइडेंटिफाई करना है किसी चीज को, तो कोई भी किसी भी तरीके का आ रहा है, अगर हम उसमें थोड़ी यूनिफॉर्मिटी ज्यादा कर दें कि सभी लोग व्हाइट शर्ट पहन के आएंगे, GLA के जितने लोग होंगे, है ना, ब्लू कलर की टाई होगी, तो ये आपने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ठीक, अब क्या हुआ? आपने और रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया कि उसके बाद सिर पर कैप होगा, उस पर GLA लिखा होगा, एक लोगो लगा होगा, उस पर GLA लगा होगा। तो हम लोगों को जितने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगे उतना पता करना ज्यादा आसान होगा, आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान होगा। जितने रिस्ट्रिक्शन कम होंगे, अगर हमने कहा ओपनली जो भी जैसे भी आना है आपको, आप आइए, तो कोई पैंट शर्ट पहन के आ सकता है, किसी भी कलर की पहन के आ सकता है, कोई धोती कुर्ता पहन के आ सकता है ना, कोई कुर्ता पाजामा पहन के आ सकता है। इसका मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन कम विद एनी ऑफ द ड्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दिस सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई योर स्टूडेंट्स, है ना?
तो हमारे लिए बहुत आसान हो, बहुत मुश्किल होगा किसी को आइडेंटिफाई करना। तो अगर मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा काम किस मशीन का होगा, पता करना, बड़ा काम कौन करेगी सबसे ज्यादा, मतलब जिस पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और जिस पर रिस्ट्रिक्शन सबसे कम होगा उसको पता करना ज्यादा आसान होगा। तो अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि विच मशीन, विच ऑटोमेटन इज मोर पावरफुल, तो कौन सा ऑटोमेटा आपको ज्यादा पावरफुल चाहिए? वेरी गुड। जयंत, राम बल्लभ, गुड। अदर्स प्लीज रिप्लाई। अब इसको बिल्कुल स्टोरी की तरह समझो, आप कभी भी आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हमेशा समझ में आएगा, है ना। नमन दोबारा सोचो बेटा, आप जो लिख रहे हो आंसर उसको एक बार सोचो, है ना। मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक डॉक्टर है, वो क्या करेगा, नम एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, और फिर एमसीएच करके वो क्या करता है, एक स्पेशलाइज काम करता है ना। केवल स्पेशलाइज काम करता है कि वो ब्रेन ट्यूमर का काम करता है। दूसरा आदमी है, वो सर्जरी है, वो ब्रेन ट्यूमर की भी सर्जरी कर देगा, कहीं की भी सर्जरी कर देगा, ठीक है। और एक ऐसा डॉक्टर है जो सर्जरी भी कर देगा, मेडिसिन भी दे देगा, और कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा तो फ्रैक्चर को भी सही कर देगा। ऐसी सिचुएशन है। सो मोर रिस्ट्रिक्शन इज ऑन विच डॉक्टर, किस पर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है, दैट इज एमएस एंड एमसीएच, जो केवल ब्रेन की सर्जरी कर रहा है वो उसी के बारे में जानेगा। जो ब्रेन की सर्जरी के अलावा बाकी के भी कर सकता है, इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर रिस्ट्रिक्शन कम ज्यादा हुआ, है ना। वो तो कुछ भी करेगा। इसके अलावा एक तीसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, वो क्या कर सकता है, फ्रैक्चर को भी प्लास्टर भी कर सकता है, फ्रैक्चर कहीं हो जाता है तो मेडिसिन को भी दे सकता है, सर्जरी भी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट पर्टिकुलर गाय कैन डू सर्जरी एज वेल एज ऑर्थोपेडिक एज वेल एज मेडिसिन वट। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका काम ज्यादा टिपिकल हुआ, राइट। So, as per the Chomsky classification, type 0 grammar is unrestricted grammar, means all the grammar that we have considered is type 0 grammar, and Turing machine is the automaton that is used to accept that grammar, right? So, the job of Turing machine is very typical, you can say, है ना, कि Turing machine can be considered as the most powerful machine because it can accept a unrestricted grammar. Are you getting my point? ट्यूरिंग मशीन अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को एक्सेप्ट करती है, इसलिए ट्यूरिंग मशीन में आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रेगुलर लैंग्वेज पढ़ा, तो मैंने आपको कहा ए एन बी एन, अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, इसके लिए हम लोगों को ट्यूरिंग मशीन सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना था। तो वी कांट आइडेंटिफाई इन दिस केस दैट the number of iteration of A must be number of iteration of B. It cannot be possible with the help of finite automata. But the same thing can be possible with the help of PDA. PDA के थ्रू ये पॉसिबल था कि हम लोगों ने कंपेयर करा लिया by using stack, right? So now, if suppose I ask you one more question, that is design a PDA for AN, BN, CN, right? AN, iteration of A is N, and iteration of B is N, and iteration of C is N. So it is not possible to design a PDA for this particular language. Why? Because we can compare A with B, but how can we compare C, that C is the equivalent of A and B, right? So it is not possible to design a PDA for this particular language. So, but if we talk about the Turing machine, that design a Turing machine for A and B and C N, then you can't say that Turing machine is not possible for this particular string or language, right? क्योंकि Turing machine का क्या है? Turing machine is a automaton that will accept unrestricted grammar. कुछ भी हो, all the grammar that we have considered is accepted by Turing machine. That's why Turing machine is most powerful machine or most powerful automata. Is it clear?
अब अगर आपसे कई बार इसमें क्या है, अब आगे जाके थ्योरेटिकल चीजें भी स्टार्ट होंगी, तो आपसे कोई थ्योरेटिकल भी कह सकता है प्रूव दैट ट्यूरिंग मशीन इज मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटा। तो आप कैसे प्रूव करोगे? मैथमेटिकली इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे कि अगर हम टाइप 0 ग्रामर का मतलब क्या हुआ? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी ग्रामर पर रिस्ट्रिक्शन होना होना चालू हो गया है ना। तो जिस ग्रामर पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा उसको एक्सेप्ट करना, उसको पता लगाना आसान होगा। जिस पर सबसे कम रिस्ट्रिक्शन होगा उसको पता लगाना मुश्किल होगा। होगा कि नहीं? तो इसीलिए कोई भी एग्जांपल लेके हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस प्रॉब्लम को रेगुलर नहीं हो सॉल्व कर सकता, मींस फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कर सकता, दैट कैन बी सॉल्व बाय पीडीए। और जिसको पीडीए भी नहीं, कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता, दैट कैन बी सॉल्व बाय ट्यूरिंग मशीन। मींस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम must be solved by Turing machine. That's why Turing machine is most powerful automata. It is clear? यहां तक बात समझ में आ रही सभी को? नाउ ये तो अब मैंने ये हाईलाइट क्यों किया टाइप 2 को? ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग टाइप 2 को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने जस्ट वी हैव स्टार्टेड आवर सिलेबस फ्रॉम मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, राइट? तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा क्योंकि ये मशीन है जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर को एक्सेप्ट करती है। आफ्टर दिस वी हैव स्टडीड दिस रेगुलर ग्रामर और रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड देन वी हैव स्टार्टेड आवर पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए स्टार्ट किया था, और नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो जस्ट ए ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग ग्रामर, ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग ग्रामर, राइट? इसके बाद हम लोग इस एलबीए हमारे सिलेबस में नहीं है। वी विल स्टडी ट्यूरिंग मशीन एंड करस्पॉन्डिंग रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्यूमरेबल रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है? तो इस तरीके से हमें सिलेबस पढ़ना है। तो अगर हम एंटायर सिलेबस की बात करें तो आर होल और एंटायर सिलेबस comes under the category of or under the classification of Chomsky, राइट? तो हम लोगों ने अभी तक इसी तरीके से पढ़ा और पूरा सब्जेक्ट इसी तरीके से है कि पर्टिकुलर टाइप की ग्रामर और उसकी मशीन, पर्टिकुलर मशीन और उसकी ग्रामर। सो इट इज क्लियर? यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ बेटा? तो आपको मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है कि टाइप 0 ग्रामर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर होती है और ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करती है। टाइप 1 ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड एलवीए इज मशीन दैट एक्सेप्ट दैट ग्रामर। टाइप 2 ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड पीडीए विल एक्सेप्ट दैट ग्रामर। टाइप 3 इज रेगुलर ग्रामर एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विल एक्सेप्ट दैट ग्रामर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? गुड, थैंक यू उन्नति। अब जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो आप लोग, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था ना अभी, वेन डायग्राम के थ्रू या मेंबरशिप डायग्राम के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना है। सो नाउ यू कैन सी, आप इसे नोट कर सकते हो। इसको मैंने जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको आप नोट भी कर सकते हो। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा समझने के लिए। आप ऐसे भी समझ सकते हो उस चीज को। और नाउ with the help of this diagram, that diagram shows to you one-to-one mapping, you can say. In this diagram you can clearly see this is type 3 grammar, that is the most restricted grammar, and this type 3 grammar is called regular grammar and accepted by finite automata। जो मैं बात बोलना चाह रहा था इसके थ्रू, टेबल के थ्रू, दिस इज द सिंपली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टेबल। अगर आप इस टेबल को याद कर सकते हैं, इस टेबल को भी याद कर लीजिए। और द सिंपली विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम जस्ट वी आर रिप्रेजेंटिंग द टेबल, सिंपल। So type 3 grammar is called regular grammar and accepted by finite automata. And type 2 grammar is called context free grammar and accepted by PDA. And type 1 grammar is called context sensitive grammar and accepted by LBA, linear bounded automata, right? In type 0 grammar, that is unrestricted grammar, means all the grammar that we have considered are type 0 grammar and it is recognized by Turing machines. So this is the simple classification of the grammar along with its acceptability of the machine. ठीक है? आप यहाँ पे भी देखा है, शॉर्ट में लिख रखा है, इसीलिए आप इसको भी नोट कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन जब हम कुछ टाइम के बाद इसको रिकॉल करेंगे, इन दैट टाइम इट इज हार्ड टू
हार्ड टू रिकैप। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा नोट जरूर करें, जैसा मैं आपको शुरू से बोलता हूँ, राइट। So simply, type 0 grammar is called unrestricted grammar. This is a short note about these type of grammar. And type 1 grammar is context sensitive grammar. Type 2 grammar is context free grammar. And type 3 grammar is called regular grammar. If I talk about the language, type 0 language, so type 0 language is called recursively enumerable language. Type 1 language is called context sensitive language, and type 2 language is called context free language, and type 3 language is called regular language. So if anyone asks you about the language, so type 0 language is recursively enumerable language, 1 is context sensitive. सभी में ग्रामर के आगे language लगा देंगे, but in case of this unrestricted language, we can imply is a specific name, that is recursive enumerable language. Recursive enumerable is the language that is derived from unrestricted grammar. यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? Am I audible? वॉइस में बेटा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? प्लीज रिप्लाई. Am I audible? दीक्षा बेटा आपने लिखा ना अभी, वेरी गुड, थैंक यू. दीक्षा आपने लिखा कि ऑडिबल नहीं, इसलिए मैंने पूछा था, है ना? तो हो सकता है आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम हो गई हो. ओके, गुड, थैंक यू. So now this is the simply classification, or agar if anyone asks you the draw the Venn diagram of different classification of the grammar along with its machine, so this is the answer for this particular question. Now the point is, how can we find the particular type of grammar, that this grammar is type 1 or type 2 or type 3? How can we distinguish between them? So on the basis of the production rule, we can distinguish different category of the grammar. So let's see. Type 0 grammar means without any restriction. तो इस पर तो कोई restriction नहीं है. It means all the grammar that we consider is the type 0 grammar. Type 0 तो सभी हो गए, ठीक है? अब now, if we apply a type 1 grammar की बात करते हैं. Type 1 grammar means this is context sensitive grammar, and type 1 grammar generate the context sensitive language. Means type 1 grammar क्या करेगा, क्या generate करेगा? Language. और जो language generate होगी, by default that language will be context sensitive language, because it is derived through the context sensitive grammar. And how can you say that a particular language is a context sensitive? If the production in the form of alpha A beta to alpha gamma beta, if any production rule is in this format, then you can say that this particular grammar is called context sensitive grammar, where A belongs to N. A belongs to N means Vn आप लिख सकते हो यहाँ पर, सॉरी सिग्मा टर्मिनल्स. A क्या होगा? टर्मिनल्स को बिलोंग करेगा. एंड अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू Vn यूनियन टर्मिनल का स्टार. ये टर्मिनल हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, this A belongs to terminals, right? And the important point is the string alpha and beta, this alpha and this beta. This alpha beta may be the empty, but the important point is this gamma must not be the empty. ये कभी भी empty नहीं होगा. दोबारा देखिए इस चीज को, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं. इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी हो सकता है, ये कॉन्टेक्स्ट ये भी एम्प्टी हो सकता है, बट ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा. दिस इज द रिस्ट्रिक्शन ओवर दिस टाइप 1 ग्रामर, ठीक है? एंड हियर दिस अल्फा एंड बीटा इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट एंड बीटा इज कॉल्ड द राइट कॉन्टेक्स्ट, राइट? इसको क्या कह सकते हैं हम? अल्फा को क्या कहेंगे? लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, और बीटा क्या होगा? राइट कॉन्टेक्स्ट. और ये ए जो होगा ये क्या होगा? वेरिएबल होगा, मींस नॉन टर्मिनल होगा. वेरिएबल होगा, सॉरी, नॉन टर्मिनल का मतलब हुआ वेरिएबल. तो नॉन टर्मिनल लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, ए बिलोंग्स टू Vn लिखो आप. मैंने भी नहीं लिखा है गलती से, इट इज Vn सिंपली.
मीन्स और हमेशा ये क्या होगा, ये चीज ए जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, नॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या हुआ, सिग्मा, है ना, स्मॉल में जो लिखते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है, वीएन। तो इट विल ऑलवेज बी वेरिएबल। बट इन केस ऑफ दिस, बट गामा मस्ट बी नॉन एम्प्टी। इसमें कंडीशन क्या है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसा हमने अभी कहा कि अल्फा आपका ये एम्प्टी हो सकता है, ये बीटा एम्प्टी हो सकता है, लेकिन इसमें गामा कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। This is the restriction over this one. So how can we find a particular language in a context sensitive language if any language follow the production rule alpha a beta to alpha gamma beta, then it is called a context sensitive language where alpha and beta are called, alpha and beta may be empty, but gamma cannot be empty. First thing. And second thing, A belongs to Vn, right? And alpha, beta, gamma belongs to Vn union sigma whole star. ये बाकी के जो हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकते हैं। Is it clear? और इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है. So now let's the example. This is the simple example for the same. In this case, you can see here. Suppose this B is the your वेरिएबल, राइट? तो इसका ए क्या हो गया, इसका लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट, और बी राइट कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, एम्प्टी। तो अगर हम इसको कंपेयर कराएं किससे, अल्फा ए बीटा टू अल्फा गामा, सॉरी गामा बीटा, right? So in this situation you can find out that A is the alpha, A is what, ए क्या होगा, ये वाला ए, बी जो होगा वो ए हो गया, और बीटा क्या हो गया इधर, नल। बीटा क्यों नल हो गया, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा क्या हो गया, तो ए हो गया, और गामा क्या हो गया, गामा ये सारा हमारा गामा हो गया, और ये बीटा क्या हो गया, यहाँ पर नल हो गया, राइट? सो इन दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर टाइप 1 grammar. And let's see the another example, that is A to BCA. It means that here the left context is empty and right context is empty, right? A is what, A is the simply this one A, this is the variable, right? And after this you can find here alpha beta gamma. So this is the simple, this is gamma, and sorry, this is not the gamma. You can find here alpha gamma beta. So you can see here this is can be considered as the alpha or gamma. This can be considered as the gamma, and beta is empty here, right? कुछ भी consider करके देख सकते हो आप. But the important point is in this situation there must be context. It may be possible that the context may be null, right? Simply. अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप जब आप दूसरे ग्रामर पढ़ेंगे कैटेगरी, तब आपको ये लगेगा कि ये तो सर आपने पिछले वाले में भी बताया था, है ना, ये प्रोडक्शन रूल तो पहले वाले में भी था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये टाइप 1 है तो ये टाइप 2 भी हो सकता है, राइट? तो अगर कोई ग्रामर हमारे पास टाइप 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो टाइप 2 तो होगी, है ना, टाइप 1 भी होगी और टाइप 0 तो होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टाइप 1 है, इसका मतलब क्या है कि उस पर हमने रिस्ट्रिक्शन ज्यादा कर दी। तो ऐसा नहीं कह सकते ये टाइप 0 नहीं होगा, है ना, 0 तो होगा ही होगा, टाइप 0 तो सभी होंगे। और अब आपने क्या करा, इस पर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे कल, और यहाँ से आप देख भी सकते हो कि इस पर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, और इस पर थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, और इस पर और कम रिस्ट्रिक्शन है, इस पर सारे रिस्ट्रिक्शन आपने हटा दिए, ठीक है ना? तो अब हम धीरे धीरे इसके रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाते जाएंगे, और उसके बाद फाइनली टाइप 3 तक पहुंचेंगे। आ गया समझ में? इसी तरीके से आगे डिस्कस करेंगे टाइप 2 ग्रामर, टाइप 3 ग्रामर, देन वी विल स्टार्ट डेरिवेशन ट्रीज। ठीक, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं कोशिश करूंगा आपको एक क्विज अटेंड कर क्विज ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है? सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।